So good morning, everyone. So we were discussing about the enzymes. So we have started, though we have started our class today a bit late, but of course we will discuss some of the other aspects of it and we'll conclude. Anyways, so last time somebody has put forth some factual things about the enzymes, the chemical and the physical characteristics also. We had an overview of the enzymes, what are they, how do they act, and how the rate of reaction or the metabolic processes are being modulated. As I had already told, in biological systems, the catalysts, which these enzymes are called out, they usually increase the rate of reaction. That means they reduce the activation energy so that they can the reaction can be accomplished in a smooth and a speedy manner. So let me share one presentation. Share. Okay. I think my screen is visible, I suppose. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can you all read the screen, the slides? Yes, sir. You can read, I suppose, right? The font and everything. Yes. Like, tell me one thing. How many of you like log in with your desktops or laptops? So I log in with my laptop. Okay. I think the majority would be from mobile only, right? So for the mobile people who have logged in through mobile, is it visible or is it legible or readable for those who have logged on with mobiles? It is visible. Okay. And if at all you need, when you feel that this is okay and the slide can be like important or significant, you can screenshot the whole screen, the mobile screen, so that you can read the screen, the slide afterwards, right? So, you all can see that these are the macromolecules. Do you understand what macromolecules are? Macromolecules. मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? Anybody? So they are molecules having high molecular weight and large, and the number of atoms in these molecules are more. So do you have any idea जैसे कि कितने molecular weight से या फिर कितने बड़े molecules को macro molecules count करते हैं? कोई idea है? So I don't remember. You don't remember. Okay. जो protein molecules हैं, जैसे suppose करिए amino acids हैं, या फिर कहें हम carbohydrates हैं, polysaccharides हैं, okay, या फिर fat molecules हैं, ठीक है, fatty acids जो हैं, जैसे कि अब जितने ज्यादा कार्बन एटम्स इसमें होंगे उतना बड़ा ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, एंड जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा हम इनको वी टेक देम आउट ऑफ द माइक्रोमोलिकुलर सेक्शन और उनको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स. देयर इज अ रेंज आफ्टर व्हिच वी कॉल द मॉलिक्यूल्स एज मैक्रो. जैसे अभी देखा जाए तो आपने एक टर्म सुना होगा डाल्टन. डाल्टन वर्ड सुना है आपने? डाल्टन, DALTON. Yes, sir. हाँ, डाल्टन से क्या समझते हैं आप लोग? किसी का नाम है, किसी का यूनिट है, या फिर ये क्या डिपेक्ट करता है? So unit of weight है. वेट है.
वो कैसे करेंगे? हमें तो यूनिट ऑफ वेट तो ग्राम्स, मिलीग्राम्स, माइक्रोग्राम्स, किलोग्राम्स वैसे ही मालूम है। ये कौन सा वेट सिस्टम है? हम्म। एक डाल्टन मतलब कितना होता है? एक डाल्टन, वन डाल्टन, वन यूनिट डाल्टन। कोई बताएगा? चलिए एक काम करते हैं हम, ये नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आप लोग डाल्टन को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एक चीज होती है जिसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। वो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ठीक है, और ये डाल्टन उससे कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। दो आई टेल यू दीज आर नॉट, यू नो, ये चीजें आपको पूछी नहीं जाएंगी, बट स्टिल वन शुड नो why exactly we need to know about Dalton and why it is a unit of weight, what kind of weight it measures. You know, जब हमारे पास माइक्रोग्राम्स, नैनोग्राम्स, मिलीग्राम्स, ग्राम्स, किलोग्राम्स या फिर उसके ऊपर भी है क्विंटल, टन, ऐसे बहुत सारे, जब ये वेइंग यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो मेट्रिक सिस्टम में आता है, तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर वेइंग सिस्टम, या फिर ये कौन सा मेजरिंग सिस्टम है वेट को, एट व्हाट लेवल, ठीक है। तो वो आप एक बार जानेंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी रेंज के डाल्टन के ऊपर के मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स में काउंट करते हैं। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली ईदर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बिकॉज वैसे भी देखा जाए तो दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम नेकेड आइज, तो वो मॉलिक्यूल्स हमें नजर नहीं आते हैं। लेकिन डाल्टन एक ऐसा यूनिट है जो आप लोग जानने की कोशिश करेंगे विद इन दिस 3-4 days, एंड यू वुड कम अप विद द राइट एक्सप्लेनेशन कि डाल्टन किस चीज के लिए यूज किया जाता है, कौन से सिस्टम या कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है। एंड एक रेंज के ऊपर, यदि इतने रेंज के ऊपर, हमने एक रेंज के ऊपर के डाल्टन के मॉलिक्यूल्स को यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो वी कॉल दैट कि हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं। तो यूजुअली देखा ये गया है कि दीज आर यूजुअली एंजाइम्स आर यूजुअली मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। बड़े हम वो नेक्स्ट टाइम आप जब डाल्टन के बारे में बताएंगे तो वी वुड कम टू नो कि कितने रेंज के डाल्टन के बाद हम इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स काउंट करते हैं। तो दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दे आर बिगर मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ यूजुअली प्रोटीन्स, ओके। और आप सभी को मालूम है कि हम इसे बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को वो कैरी ऑन करते हैं, या फिर कहना चाहिए दे मॉड्यूलेट द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, जो कि या तो एनाबॉलिक हो सकता है या फिर कैटाबॉलिक हो सकता है। यू ऑल नो इट व्हाट इज एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मींस कैटा, तोड़ना, और कैटोस में तोड़ना, उसके बाद एनाबॉलिक मतलब वो फॉर्म करना, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, तो हम उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं या फिर एनाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब इन विच द बिगर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस, ओके। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्सिमम मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो यूजुअली पॉलीमर्स हैं, यानी कि कुछ किसी यूनिट से मिलके वो बने हुए रहते हैं। उनमें एक मोनोमर होता है जो उसको यूनिट वाइज रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एंजाइम्स यूजुअली प्रोटीनेशियस हैं, प्रोटीनेशियस मतलब प्रोटीन है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंड इसके जो यूनिट या फिर मोनोमर है वो एक अमीनो एसिड है। सो ये हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं या रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस में दे यूजुअली पार्टिसिपेट, दे एनहांस और दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। यूजुअली देखा जाए तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दे यूजुअली रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट द रिएक्शन कैन बी प्रोसीडेड या फॉरवर्डेड स्पीडीली एंड मोर इजीली और स्मूथली। और ये दिखाया गया है कि ये जो एंजाइम्स है हमारे काफी सारे लगभग एवरी टिश्यू, हर टिश्यू लेवल, आपको मालूम है सेल है, फिर टिश्यू है, फिर उसके बाद क्या है, ऑर्गन है, हाँ, या पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स हैं। ऐसे जब हम जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है उसमें सेल के ऊपर टिश्यू लेवल, क्योंकि
हर टिश्यू अलग अलग फंक्शन या फिर कहना चाहिए अलग अलग फिजियोलॉजी परफॉर्म करता है. दैट्स व्हाई वी माइट बी नीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एट डिफरेंट टिश्यू लेवल्स. तो देखा गया कि हर टिश्यू लेवल पे वी फाइंड सच मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स विच आर एंजाइम्स. और देखा ये भी गया है कि इवन दे आर सस्पेंडेड इन द फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. अलग अलग फ्लूइडिक पार्ट में भी ये सस्पेंडेड रहते हैं, बिकॉज इवन फ्लूइड्स आर द they are the media by which processes or the chemical reactions can be altered or can be not altered, can be modulated or can be enhanced by participation of these enzymes which are there in those fluids at those places where the tissue is not approachable. Tissue से apart from tissue, दो टिश्यू के बीच में कोई स्पेसेस हैं, तो ऐसे स्पेसेस में यूजुअली हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं, एंड फ्लूइड्स would perform the enzymatic activities which they contain within themselves. और देखा जाए तो इनकी जो स्पेसिफिसिटी है, यानी कि दे आर वेरी स्पेसिफिक. एक एंजाइम किसी दूसरे एंजाइमेटिक या किसी दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस में कभी इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही कभी पार्टिसिपेट करता है. दैट मीन्स दे बिकम वेरी स्पेसिफिक for a particular chemical reaction, for a particular metabolic reaction or the process. Only few enzymes are there which are very specific for for modulating the processes. And एक set of enzymes हैं जो एक particular process को modulate कर रहे हैं, तो वो enzymes किसी दूसरे process को कभी interfere या फिर modulate नहीं करते हैं. तो मतलब हर एक process के लिए specific enzymes हैं जो substrate से बहुत ही ज़्यादा significantly अपनी स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, यानी कि जिस पे वो रिएक्ट करते हैं हम उनको बोलते हैं सबस्ट्रेट. हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कि रिएक्टेंट्स, और फिर बाद में हमें मिलता है प्रोडक्ट्स मिलते हैं. तो हम यहाँ जब एंजाइम के हम बायोलॉजिकल सिस्टम में जब बात करते हैं तो वी यूजुअली सी कि द रिएक्टेंट्स आर यूजुअली कॉल्ड द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम, बिकॉज एंजाइम एक्ट्स अपॉन सबस्ट्रेट एंड वी गेट प्रोडक्ट्स विद अ स्पीडी फंक्शनिंग. ओके, तो एक तो ये है कि सभी एंजाइम्स यूजुअली प्रोटीनेशियस हैं, उनमें से प्रोटीन पार्ट है ही, लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि राइबोजाइम. राइबोजाइम मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी रेंडर करता है, या फिर कहना चाहिए जो राइबोजाइम पोर्शन या फिर टाइप ऑफ आरएनए है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, वो उनके पोर्शंस, उनके टाइप्स कभी कभी किसी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. तो हम उनको बोलते हैं कि द एंजाइमेटिक एक्टिविटी शोन बाय आरएनए टाइप्स व्हिच यूजुअली परफॉर्म सम फंक्शनैलिटी इन द मेटाबॉलिक और द लाइफ प्रोसेसेस. तो उनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं. तो राइबोजाइम्स आर यूजुअली राइबोन्यूक्लिक एसिड्स के पोर्शंस, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड्स का जो हमारा बेस पेयर का सीक्वेंसेस है डीएनए में, और थायमिन की जगह यूरासिल होता है आरएनए में. तो आरएनए के अलग अलग टाइप्स हैं जो कि प्रोटीनेशियस नहीं है, नाइट्रोजन बेसेस है उनमें, और वो एक फॉस्फो और शुगर बैकबोन से जुड़े हुए रहते हैं. तो वो न्यूक्लिक एसिड्स भी जो एसिडिक होते हैं यूजुअली, तो वो समटाइम्स दे पार्टिसिपेट एज एंजाइम्स in some life processes. तो हम उनको छोड़ के बाकी जितने भी हमें एंजाइम्स आज तक भी इन्हें डिस्कवर किए गए या फिर जाने गए हैं, they all are usually proteinaceous. They are proteins only. They are made up of a set of amino acids. अब जैसे लिखा हुआ है राइबोसोम्स आर certain RNA molecules that act as catalyst. यानी कि वही है, कुछ पोर्शंस, कुछ टाइप्स ऑफ RNA हैं जो किसी प्रोसेसेस को enhance करते हैं, modulate करते हैं या carry on करते हैं, and they act as enzymes, catalysis करते हैं, right? और बाकी बहुत सारे प्रोसेसेस के भी नाम दिए हुए हैं यहाँ पे जहाँ पे राइबोसोम्स पार्टिसिपेट करते हैं. बट एनीवेज, तो हमने तो ये जान लिया कि एंजाइम्स कुछ नहीं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. अब लेकिन एंजाइम को जब स्टडी की गई, उसके केमिकल कंपोजिशन को जब देखा गया, तब पता चला कि sometimes they are simply proteins which enhance the reactions,
और enhanced metabolic reactions sometimes they are conjugated proteins, यानी कि वो Excuse me, किसी के sir. साथ, हाँ जी, So the lower part of the slide is not visible because it's showing stop sharing. Can you hide that? oh let me see, yeah, that can be done, I suppose, yeah. Yes, sir. I Thank think you, now sir. it's visible, right? Okay. Yes. तो जैसे पिछले वाली स्लाइड में भी लिखा हुआ था, doesn't go back. Now this one is not working. Is it okay? It's sharing. Something is going on. Hmm. It was stuck. Net is a bit slow. That's why it might happen. अभी शायद नीचे का पोर्शन आपको नजर नहीं आ रहा होगा लास्ट स्लाइड में. तो जैसे लिखा था कि ribosomes catalyze the cleavage and the synthesis of phosphodiesterase bonds of RNA in specific sites of RNA. जैसे आपको मालूम है ऐसे बहुत सारे एंजाइम, हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इनकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल. हमें नॉर्मल एंजाइम्स का ही हम एक यानी कि स्टडी करेंगे. तो ये कई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन आरएनए, यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आपको मालूम है जो फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको रेगुलेट करते हैं, उनको मॉड्यूलेट करते हैं, कभी कभी उनको तोड़ते हैं, कभी कभी उनको फॉर्म करते हैं. बाय दैट वे these ribozymes, which are nothing but the RNA fragments, RNA types, which are usually not proteinaceous but act as enzymes. Okay, तो कुछ एंजाइम्स हैं जो केमिकली, हम यदि केमिकल कंपोजिशन यदि देखते हैं तो देयर आर few enzymes which are simply proteins, nothing else. They usually act upon some substrate. They make a substrate and enzyme complex, and on the basis of that, again we get a product and the enzyme as it has entered into the reaction. जैसे वो रिएक्शन में गया था वैसे ही वो रिएक्शन से बाहर आ जाएगा और हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा. इस प्रकार से इस प्रकार का रोल है एंजाइम का, राइट. तो कुछ होते हैं बहुत ही सिंपल, नो अदर थिंग्स अटैच्ड विद देम, और कुछ होते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स. कंजुगेटेड प्रोटीन्स में हमने देखा कि कभी कभी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं या फिर जुड़ सकते हैं. They covalently or usually covalently they bond with the main protein molecules and they act upon. Otherwise, sometimes the presence of those molecules also affect the activity of enzymes, right? तो जैसे हम देखें यहाँ पे coenzymes या फिर जिसको हम यहाँ पे लिखा हुआ है conjugated protein is nothing but an, इसको हम define कर सकते हैं holoenzyme is equal to apoenzyme plus cofactor. And ये holoenzyme मतलब holo means complete enzyme which has got apoenzyme. Apoenzyme means which has not been include like this portion of the enzyme which is not including a factor which is usually making it as a conjugated protein. यानी प्रोटीन के साथ में कुछ और चीज का एसोसिएट नहीं रहना, यानी कि सपोज करिए एक ए एंजाइम है तो उस एंजाइम में यदि मान लीजिए सी नाम का एक को फैक्टर अटैच होता है, इट बिकम्स एसी, तब वो एक्टिव होता है. यानी कि एक एंजाइम many a times it becomes active when some cofactor gets conjugated with it. तो वैसे को हम यूजुअली तीनों को वैसे कंजुगेटेड के साथ में कंजुगेटेड प्रोटीन जिसमें कि एक एंजाइम प्लस उसका कोफैक्टर कोवलेंटली और सम अदर वे यदि अटैच्ड है तो हम उसको बोलते हैं कंप्लीट एंजाइम. और आपने एक और नाम सुना होगा प्रो एंजाइम्स. प्रो एंजाइम्स एक वर्ड है जो ये बताता है कि जब एंजाइम की जरूरत नहीं है तो they are made inactive. They are made inactive with some attachments. वो भी प्रकार कंजुगेशन ही है, बट लेकिन द कंजुगेशन कैन बी ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी कि हो सकता है कि वो किसी शुगर मॉलिक्यूल से वो उसे इनएक्टिव बना दें, या फिर किसी लिपिड मॉलिक्यूल से इनएक्टिव बना दें, या फिर किसी और प्रोटीन मॉलिक्यूल से उसे इनएक्टिव बना दें. तो एंजाइम एंड प्रो एंजाइम. प्रो एंजाइम मतलब वो एंजाइम्स जो कि अभी एंजाइम एक्टिविटी रेंडर नहीं कर सकते हैं. दे कैन नॉट परफॉर्म द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ सम एसोसिएशन ऑफ सम मॉलिक्यूल, ईदर प्रोटीन, लिपिड्स और फॉस्फेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो अब जो भी हम कंजुगेटेड पार्ट है एंजाइम के साथ
हम उनको कोफैक्टर्स बोलते हैं। कोफैक्टर्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, है ना। उसमें हम जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कोएंजाइम्स, है ना, द लूजली बाउंड टू एंजाइम्स, नॉन कोवेलेंटली बाउंड, है ना, ये कोवेलेंटली बाउंड नहीं होते। यानी कि एक जैसे कि आपने कुछ सुना होगा वंडरवॉल्स फोर्सेस एक होती हैं, तो वंडरवॉल फोर्सेस वीक होने के कारण ये क्या कोवेलेंटली बॉन्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे कई सब्सटेंसेस हैं, दे कुड बी ऑर्गेनिक और दे कुड बी इनऑर्गेनिक टू कोएंजाइम्स में। तो अब कई बुक्स में आपको ये मिलेगा कि कोफैक्टर्स वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जो यूजुअली कंजुगेट करते हैं एंजाइम्स के साथ टू मेक इट एक्टिव। किसी किसी बुक्स में लिखा रहता है कि कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है which conjugate with the enzymes to make them active. It depends, but the basic principle या basic crux ये है कि जानना ये जरूरी है कि एक एंजाइम के साथ यदि कोई चीज कंजुगेट हुई तो हम उसे कोफैक्टर कहते हैं। That cofactor can be either loosely attached or covalently attached. तो जब loosely attached रहता है उसमें they could be inorganic molecules also and they could be organic molecules too. दूसरा एक और है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बोलते हैं, दे आर यू नो वेरी टाइटली और द इवन कोवेलेंटली बाउंड टू एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम से जब बहुत ही टाइटली या फिर कहना चाहिए उनके कॉन्फ़िगरेशन को वो ऑल्टर करते हैं। यानी कि एक एंजाइम है दैट इज इनएक्टिव, दैट इज अ प्रो एंजाइम, बट द अनदर पोर्शन ऑफ सम अदर ओरिजिन, किसी और टाइप के मॉलिक्यूल का उनके साथ कोवेलेंटली अटैच होने के कारण their molecular structure changes, and that molecular structure, the change of that molecular structure helps them in performing their activity या फिर enzymatic activity को perform करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो एक कुछ common terms हैं, जैसे कि आपने ये सब already जान लिया। apoenzyme क्या है? protein portion of an enzyme that is lacking a coenzyme, right? A coenzyme is an organic non-proteinaceous compound that binds. देखिए यहाँ पे कुछ और define किया हुआ है। Coenzyme is a organic non-protein compound that binds with an enzyme to catalyze a reaction and are often broadly called cofactors, but they are chemically different. A coenzyme cannot function alone, but can be reused several times when paired with an enzyme. देखिए ये बड़ा ही एक अच्छा इवोल्यूशनरी सिस्टम है, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है ये। भले ही हम इसको ऐसे ही आप सभी को ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है कि कोएंजाइम है, वो ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीनेशियस कंपाउंड्स हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं और फिर बाद में वो केमिकल रिएक्शंस को एनहांस करते हैं या कैटलाइज करते हैं, हम उनको कोफैक्टर्स भी कहते हैं। अब जैसे किसी किसी बुक्स में आपको कोफैक्टर्स के डेफिनेशन में लिखा रहेगा कि दीज आर द इनऑर्गेनिक non-proteinaceous compounds which usually bind or which usually loosely bind with the enzymes to carry on the reactions. Non-proteinaceous मतलब उनमें अमीनो एसिड्स हैं नहीं, they could be of any origin. अब लेकिन देखा है कि शुगर मॉलिक्यूल्स का ओरिजिन में रहा। अभी आपने एक चीज और पढ़ी है आपके फर्स्ट ईयर में कि जैसे ही हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स की मदद से, if at all they are to be transported to some other tissue area or the trophic areas, अलग जगह पे उनको भेजना होता है, तो दे आर यूजुअली वेसिकल्स में दे आर बाउंड एंड दोज वेसिकल्स रीच टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उनका क्या कहते हैं हम उनको, दे गेट मॉडिफाइड, यू नो, दे गेट प्रोसेस्ड। यानी कि एंजाइम्स या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि एंजाइम बनने वाले हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मतलब एंजाइम्स मतलब प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स मतलब उनका सिंथेसिस होगा वही डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स की मदद से। इफ दे आर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू सम अदर पोर्शन वेयर दे आर बीन सिंथेसाइज्ड, तो उस समय वो वेसिकल्स में स्टोर होते हैं, एंड दीज वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीच अप टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये मॉडिफाई होते हैं या फिर प्रोसेस किए जाते हैं। लाइक व्हाई? बिकॉज दीज एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर usually not needed in that particular cell, they are needed somewhere else, so they have to be transported. The transportation part is another aspect, वो blood से भी हो सकता है या फिर extracellular spaces के through भी हो सकता है। Anyways, तो ये जो processing है, that processing is needed because if enzyme is being formed, that protein molecule is formed, which has to be like, you know, acted upon some substrate,
तो unless and until that enzyme reaches to the spot and finds a substrate to react upon, तब तक उसे उसके काम को रोका जाता है. तो that's why this processing is needed in Golgi complex. तो वो Golgi complex में वो प्रोसेस के बाद फिर वो जब बाहर निकलते थे they become inactive, जिसको हम बोलते हैं proenzymes. तो ये proenzymes फिर once they are transported to the tissue level or sites where they needed to be acted upon the substrate, वहां जब लेके जाए जाते हैं तब इनको तब ये इनका जो एक्स्ट्रा जो प्रोसेस हुआ पोर्शन था वो डिटैच होता है, मे बी बिकॉज ऑफ सम कोफैक्टर और सम कोएंजाइम. कोफैक्टर जैसे कुछ बुक्स में जैसे मैंने बताया था इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, मे बी सम आयोनिक कंटेंट. उस रीजन में पहुंचने के बाद उस रीजन में उस एंजाइम की एक्टिविटी की जरूरत है, तो वो किसी चीज को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट में फॉर्म में लेके आता है. वो प्रोडक्ट की कमी हो गई है तो दैट पर्टिकुलर रीजन नीड्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी टू गेट दैट प्रोडक्ट अगेन. सो वो उस प्रोडक्ट को फिर से हासिल करने के लिए दे माइट हैव सम आयोनिक इम्बैलेंस और आयोनिक ट्रिगरिंग ऑफ दीज प्रो एंजाइम्स टू गेट into enzymatic form or the active form of enzyme, right? So वो कभी हाँ बोलिए, समय हो गया. So we have a समय हो गया. chemistry class now. Okay, no problem. We'll end up over here. We'll meet again. Thank you very much. We'll sign Thank off you. today. Okay.